everyone. I hope you all are good and you all are practicing problems. Let us for now look at this one. What is said in this question? We are given one solid sphere which is a conductor. It is of radius r and then there is a cavity. And this cavity is of radius, it's not mentioned actually, it's a cavity. So cavity meaning this space is free of the conducting portion, conducting region. Done it? So this is not a conducting space. You can call it like as a tiny sky. You can call it is a tiny sky, meaning this space is filled with ether, meaning vacuum, you can say, or air, yani ki insulator, right? So this space is free of conducting space. Next, what is said is there is a charge q placed here, and because of this charge q placed over here, we are asked what will be the potential of conductor and how this potential will change if this q charge is getting displaced by delta x distance inside the cavity. This is what we need to answer in this question. तो चलो इसको ध्यान से देखते हैं. सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं what will be the effect of placement of charge q inside the cavity. Okay. So, I mean, if you are keeping this charge Q inside cavity, ये Q charge क्या करेगा? If there is a free charge in the surrounding, it will attract negative free charge towards itself and it will repel positive free charge away from it, right? So, यहाँ पे इसके surrounding में क्या है? इस region में तो कुछ भी नहीं है. I mean, this is insulator. यहाँ पे कोई free charge नहीं है. But in the region which is, I mean, which is beyond this cavity, यानी कि in this region, this is a conducting space. It will have free positive and negative charges. So negative charge will, I mean, come as close to the charge as it can. And in that case, कितना close आ सकता है? एयर में वो हैंग नहीं हो सकता, टाइनी स्काई में वो हैंग नहीं हो सकता. इट विल स्टे विद द क्रिस्टल, कंडक्टिंग क्रिस्टल. सो दैट कैन बी द inner surface of this cavity, right? So यहाँ पे ऐसे negative charge attract होगा. And positive charge जितना दूर जा सकता है उतना दूर जाएगा, बट इट विल स्टे इनसाइड द क्रिस्टल, राइट? सो कितना दूर हो सकता है? इनर सरफेस ऑफ दिस आउटर स्फीयर. ठीक है. सो यहाँ पे जाएगा ऐसा. अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो हमें दिमाग में रखनी है. सो दिस विल बी द चार्ज सेपरेशन हैपनिंग हियर बिकॉज ऑफ दिस क्यू चार्ज गेटिंग प्लेस्ड. अब आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि यहाँ से I mean, this is the cavity, here is the q charge, this is insulating space, right? So here electric field will exist. So electric field emanating from q charge getting released out of q charge will end on the on this cavity wall, right? So it is ending on the cavity wall. ऐसे भी आप कह सकते हो end होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. सो पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव पे एंड हो रहा है. Why will it not continue further into this space? Can it continue? नहीं. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये कंडक्टिंग स्पेस है एंड इनसाइड कंडक्टर वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. सो इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वो ट्रेसपास नहीं कर सकता, उस रीजन को वो इन्वेड नहीं कर सकता, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में नहीं जा सकता. ये यहीं तक लिमिट हो जाएगा. सो दिस रीजन विल बी डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. सो डिवॉइड मीनिंग आई मीन it will be free of electric field. Now, I mean, what else can be the, I mean, what more field lines that you can draw over here? So यहाँ पे ऐसे तो आपने draw कर लिया, इस region में नहीं बना सकते. Further, ये positive charge है, यहाँ से electric field ऐसे continue होगा, यहाँ से ऐसे continue होगा, and it will go up to infinity like this. ठीक है. सो कुछ ऐसा होगा. अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसा सोचो कि देयर वाज अ पॉइंट चार्ज q इन द एयर. ठीक है. सो यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता और ऐसे जाता, कंटिन्यूअस होता. यहाँ पे ब्रेक आया है बीच में ऐसा. फील्ड लाइन में ब्रेक नहीं है, आई मीन रीजन में ब्रेक है, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो. और ये इसलिए हुआ क्योंकि क्यू के सराउंडिंग में कुछ कंडक्टिंग स्पेस है एंड कंडक्टिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा सकता. सो नहीं गया है, उसके बाद वो कंटिन्यू हुआ है. ठीक है. सो इट इज दिस. अब चलो हम बात करते हैं किस चीज की? अब हम बात करते हैं पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर की. सो कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होगा? आप देख लो, हमने पढ़ा है कि इफ देर इज अ सॉलिड स्फीयर, डन है, and if it is conducting, then whatever is the potential of the surface will be potential at any point inside the conducting space. Done है. So what will be the potential of this point?
क्या होगा इस पॉइंट का पोटेंशियल? आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सो इफ यू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए आप गॉसियन सरफेस बना लो ऐसा। इस गॉसियन सरफेस के अंदर आई मीन ई डॉट डीएस आप करोगे, करोगे ना? एंड दिस इज क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू इनक्लोज? क्यू, इसके अंदर कितने चार्ज है? नेगेटिव इंड्यूस हुआ था, उतना ही पॉजिटिव यहाँ पे सेपरेट हुआ है। सो दिस माइनस दिस प्लस आर सेम, राइट? सो वो तो जीरो हो जाएगा। ओनली चार्ज इनसाइड, नेट चार्ज इनसाइड इज क्यू, दैट वी हैव केप्ट इनसाइड कैविटी, राइट? सो दिस इज दिस। अब आप देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा था। सो ई और डीएस के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। सो ई डीएस कॉस जीरो दैट इज 1 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और देखो एक चीज और, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट ऐसा भी कि क्यों। आप सोच रहे होगे कि मैम चार्ज तो यहाँ है, तो इससे ये इतने दूरी पे है, ये तो पास है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे कम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये कैविटी के अंदर कहाँ है, दैट इंफॉर्मेशन, और ये कैविटी किधर है, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट गेटिंग पास्ड ऑन टू दिस आउटर सरफेस। कैसे पास नहीं हो रहा? क्योंकि इस रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू ही नहीं हो रहा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, चार्ज कहाँ है, ये इंफॉर्मेशन इस सरफेस के पास नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में तुम्हारा नो नेटवर्क जोन है, कह सकते हो कोई नेटवर्क जोन है ही नहीं। तो यहाँ पे ये कैसा है, किस पोजीशन पे है, कितने डिस्टेंस पे है, वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा। ओनली मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है, और वो भी कैसे पहुंच रहा है? बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, सो सिंपली उससे मतलब नहीं है, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड कि यहाँ पे ये चार्ज से ये पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगा। नो, बिकॉज दिस पास एंड दूर का इंफॉर्मेशन इज नॉट गेटिंग ट्रांसफर टू द आउटर सर्फेस। ओके, क्योंकि बीच में कंडक्टिंग स्पेस है, सो नहीं ट्रांसफर हो रहा। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट। ई इंटू क्या लिखोगे? 4 पाई आर का स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई तुम्हारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट के क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज सेम एज you have plus q charge on the surface of conductor, and then what is the electric field on its surface? So this is kq by r square, right? And in that case what will be the potential on the surface? तुम्हें पता है, this is kq by r, and whatever is the potential at the surface will be potential at any point inside, at any inside point पोटेंशियल क्या होने वाला है? इट विल बी सेम, राइट? एंड व्हाट विल बी द पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी की अगर बात करें ना, तो आपको ध्यान से देखना होगा। कैविटी के अंदर की पोटेंशियल की अगर बात कर रहे हो, देन आई मीन देयर इज दिस नेगेटिव चार्ज। बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द सेंटर? सो तुम बोलोगे, सपोज कर लो, दिस इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज इज माइनस क्यू, एंड दिस इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज इज प्लस क्यू। सो बिकॉज ऑफ माइनस क्यू माइनस के क्यू बाई, चलो इसके अंदर के किसी पॉइंट पे निकाल रही हूँ पोटेंशियल। सो कैन वी यूज दैट थिंग? आई मीन देखो, कैविटी के अंदर अगर निकालना हो ना, यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे तीन चीजों की वजह से होगा। एक तो बिकॉज ऑफ दिस स्फीयर विच हैज नेगेटिव चार्ज ऑन इट सर्फेस, then because of this q charge, point charge at this point, and then because of positive charge on this surface। ठीक है, सो चलो मैं निकाल के बताती हूँ। सपोज कर लो ये डिस्टेंस तुम्हारा r है, ठीक है, स्मॉल r है। देन पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी हाउ मच? because of q charge kq by r, because of negative charge on the surface of this cavity, it will be minus kq by radius of cavity, let's say this is r1, and then because of plus q charge on the on this bigger sphere surface, so that is plus kq by r2। ये होगा, ठीक है, एट एनी इनसाइड पॉइंट इनसाइड द कैविटी। बट यहाँ पे अगर तुमसे पूछता है, यहाँ पूछता है, यहाँ पूछता है, इट विल बी सेम एज व्हाट इज हियर ऑन द सर्फेस। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? के क्यू बाई आर। सो वी वर आस्क्ड व्हाट? पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। सो कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होगा? इट विल बी के क्यू बाई आर। ओके, सो आर टू यहाँ पे आर है, डन है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब देखो चार्ज क्यू को अगर हमने अंदर की तरफ शिफ्ट करा, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पोटेंशियल? सो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि चार्ज को तुम कहीं भी रखो। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि चार्ज का प्लेसमेंट कहाँ है, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट गेटिंग पास्ड ऑन टू द बिगर स्फीयर।
ऑन टू द सर्फेस ऑफ बिगर स्फीयर, वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा। सो आप इसको यहाँ से यहाँ हटा लो, कोई असर नहीं पड़ेगा क्यू इन क्लोज पे, राइट? इट इज स्टिल क्यू, कोई असर नहीं पड़ेगा ऑन ई बीइंग कांस्टेंट एट ईच पॉइंट ऑन द सरफेस, राइट? कोई असर नहीं होगा ऑन दिस ds वैल्यू, सो e इज गोइंग टू बी सेम, v इज गोइंग टू बी सेम, k q by r, राइट? ओनली डिफरेंस विल बी कैविटी के अंदर अगर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे चार्ज आ गया, तो तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डिफरेंट। इधर तुम्हारा नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा और धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इधर घटती जाएगी, क्योंकि जिस सरफेस से क्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज पास है, दैट सरफेस विल हैव मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पे अगेन चार्ज प्लेसमेंट में डिफरेंस आएगा, बट अगेन पॉजिटिव चार्ज प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वाई? बिकॉज ये चार्ज कहाँ पे है इनसाइड कैविटी, दैट इंफॉर्मेशन इज कैरीड, it is packed और is loaded onto the electric field lines। वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास है और वो फील्ड लाइंस कंडक्टिंग स्पेस में जा नहीं रहा, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। सो यहाँ पे अभी भी प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऑन टू द सर्फेस। समझ रहे हो? धीरे धीरे और समझोगे, अभी 2 पोर्शन हमारे पास और है, तो चलो उसको फोकस करते हैं। हाउ डज योर आंसर टू द क्वेश्चन ए एंड बी चेंज if the cavity is not spherical and the charge q is placed at any point inside it? So what we are doing now, the cavity is not spherical, it is like this, and this is charge q। अब चलो एक काम करते हैं, सॉरी यहाँ पे पॉइंटेड एंड जैसा कुछ नहीं है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है? अब देखो यहाँ पे दिस इज ऑफ इरेग्युलर शेप, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर? तो देखो यहाँ पे चार्ज इंडक्शन में चेंज आएगा ऑन द सर्फेस ऑफ कैविटी। जो सर्फेस तुम्हारा चार्ज से दूर है, इट विल हैव charge density which will be smaller than that of this surface which is closer to the charge। so यहाँ पे difference आएगा, but again this difference will be loaded onto the electric field lines। कैसे? जैसे देखो, अगर तुम्हारा कंडक्टर ये ले लो, कैपेसिटर ले लो, कैपेसिटर पे नेगेटिव चार्ज ऐसा था एंड पॉजिटिव चार्ज ऐसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा हुआ? ऐसा हुआ, ठीक है? ऐसा था। अब मैंने क्या किया, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज इसको दे दिए, बहुत सारे, यहाँ पे भी बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज मैंने दे दिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? तुम क्लोजली स्पेस ड्रॉ करोगे, राइट? सो यहाँ पे जो क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, that is containing information that charge on this surface, charge density on this surface is greater than charge density on this surface, ठीक है? सो ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास है और वो फील्ड लाइन इस रीजन को क्रॉस नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे अभी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। बट बिकॉज ऑफ दिस क्यू चार्ज kept inside a cavity which is irregular in shape, negative charge distribution won't be uniform, it will be non uniform, ठीक है? उस तरह से यहाँ पे भी अगर आप चार्ज को, जब हमने डेल्टा एक्स से शिफ्ट किया था ना, when charge was not kept symmetrically inside the spherical cavity, यहाँ सेंटर पे ना रख के हमने यहाँ रखा, इस केस में भी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था ऑन द वॉल ऑफ कैविटी, दिस साइड मोर एंड दिस साइड स्मॉलर, राइट? so charge distribution, uniform, non-uniform, will keep on happening on the wall of cavity, but outside on the surface of conductor, it will be what? It will be uniform only, ठीक है? सो अगेन तुम्हारा पोटेंशियल चेंज होगा क्या? तुम लोग कहोगे नहीं मैम पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी भी इस कंडक्टर का शेप तो सेम है, रेडियस आर ही है, इस पे प्लस क्यू ही चार्ज है, सेम होगा के क्यू बाय आर। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, नाइदर इन ए केस नाइदर इन नॉर इन बी केस, ठीक है? सो ये कांस्टेंट होने वाला है। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन इंटायर स्पेस इन ईच केस, इन विच केस ऑल फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट लाइन। सो हमें क्या बनाना है? अब हमें बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है? दोनों ही केस में। तो मैंने इस केस के लिए ऑलरेडी तुम लोगों को दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, और पूछ रहा है कि कौन सी केस में फील्ड लाइन स्ट्रेट नहीं होगा। तो देखो फील्ड लाइन स्ट्रेट कब नहीं होता, आप कंडक्टर का एग्जाम्पल फिर से ले लो। कंडक्टर पे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया होगा और तुमने ये भी पढ़ा होगा फ्रिंज इफेक्ट। हमने ये पढ़ा है कि जो ये वाले जो फील्ड लाइंस होते हैं ना, कॉर्नर वाले, वो फील्ड लाइंस तुम्हारे थोड़े कर्व्ड होते हैं, लेकिन जो मिडिल वाले फील्ड लाइंस होते हैं ना, वो तुम्हारे क्या होते हैं? कर्व नहीं होते, वो स्ट्रेट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर मैं लेमन टर्म में समझाऊं तुम्हें, तो सिंपल रीजन ये है
इस लाइन को फोकस करो, इस लाइन पे फोकस करो, ठीक है। सो इसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही इसके नीचे नेगेटिव चार्ज है। सो ये नेगेटिव चार्ज इसको जितना रिपेल कर रहा है नीचे की तरफ, उतना ही ये नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा है ऊपर की तरफ। तो रिपल्सन उसको सेम सेम मिल रहा है फ्रॉम अप एंड डाउन, एंड दैट इज व्हाई इट इज हॉरिजॉन्टली इन स्ट्रेट लाइन प्लेस्ड, कह सकते हो, ठीक है। सो अगर तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड दैट पॉइंट इज sort of यूनिफॉर्म, सॉर्ट ऑफ सेम, देन यू कैन से कि फील्ड लाइंस क्या होगा, फील्ड लाइंस तुम्हारा स्ट्रेट होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, राइट, नथिंग, नो चार्ज इज देयर, ओनली बॉटम। सो बॉटम वाला फील्ड चार्ज, नेगेटिव चार्ज विल रिपेल दिस फील्ड लाइन। सो ये थोड़ा सा कंडक्टिंग स्पेस से, ये कंडक्टिंग स्पेस नहीं है, ये तो इंसुलेटिंग स्पेस है, इस कंडक्ट आई मीन कैपेसिटर के बीच के स्पेस से इट इज ट्राइंग टू गो आउट, सॉर्ट ऑफ, इट इज कर्व्ड, राइट, एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट रीजन, ठीक है, समझ रहे हो। सो बच्चे की तरह अगर समझोगे तो कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे देखो, जिस केस में तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा ऑन द सर्फेस, फील्ड लाइंस विल कर्व। सो यहाँ पे तो फर्स्ट केस में अगर आप ध्यान से देखो, कैविटी के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हारा क्या होंगे, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि चार्ज, जो इंड्यूस चार्ज है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। सो फील्ड लाइंस तुम्हारा स्ट्रेट होगा, आउटर ये स्ट्रेट है ऐसा, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट this thing in the second case, let us see it. In second case, if you draw, what will it look like? आप देखो यहाँ से जहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा, let's say near this it is crowded, okay, and here it is sparse, let's say here it will be crowded. So basically it is non uniform, और अगर non uniform है तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, it will be sort of curved, it won't be straight, it will be what, it will be curved. But this curved electric field thing will not get communicated to this outer surface. Outer surface पे अभी भी चार्ज तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है। सो यहाँ पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, वो फील्ड लाइंस तुम्हारा क्या होगा, कैसा होगा बताओ, इट विल गो आउट लाइक दिस। ये अभी भी स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी यूनिफॉर्म है। और क्यों यूनिफॉर्म है, आई हैव रिपीटेड इट सेवरल टाइम्स, सो आई डोंट फील लाइक आई नीड टू रिपीट इट अगेन। सो you know this, because communication of charge is placed inside what shape of cavity, at what point inside cavity is not getting communicated to this outer surface, because of no network zone in this space, which is a conducting space, ठीक है। So I hope you have understood this question, but if you have any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you, take care of yourself, bye bye.